We are the Gujarat Technological University. Since its inception over a decade ago, GTU has been empowering young and curating minds to realize their true potential. Over 4 lakh inspired students are enrolled with one of the premier academic universities in India. With more than 450 affiliated colleges in its fold operating across 5 zones of the state, GTU, the International Innovative University, your place to move forward. So the principal operation, the rotating field is set up in stator when three-phase supply is given. The stationary rotor cuts the revolving field, and due to electromagnetic induction, an EMF is induced in the rotor conductor. Now Faraday law of electromagnetic induction minus n d phi by dt. Okay, n number of turns, d phi by dt is rate of change of your flux. Okay, and minus sign stands for Lenz law. Got it? So here, basically your three-phase induction motor consists of 2 parts. One is your stator, another is your rotor. Okay. Now, stator is nothing but it is a stationary part where rotating magnetic field is generated. Okay, and rotor is rotating part which is rotated. Okay, and connected to shaft. So basic function of your motor is to convert your electrical energy into mechanical energy, right? So whatever mechanical energy you are taking out is from rotor. Fine. So stator has 3 main parts. Remember that. First part is outer frame. So this is your outer frame. You can see a red dot here. Okay, that is nothing but your outer frame. Got it? That second is stator core. Buildup of high grade silicon steel carries the alternating magnetic field. This here you can say these are nothing but core. Core is the place where your winding is mounted. Okay. Then stator winding has 3-phase winding. This is your stator winding, basically 3-phase winding. I hope you all know this. Okay. So outer frame, it is the outer body of motor protect to inner part of machine. Stator called buildup of high grade silicon steel. Okay, and it carries the alternating magnetic field, and stator winding has 3-phase winding. Got it? Now again, rotor of 3-phase induction motor. Now, rotor of 3-phase induction motor, the main part. 2 type of rotor are there. First is squirrel cage motor, and second is slip ring induction motor. Okay, or you can say phase wound type of motor. So first, let's start from squirrel cage type. Okay, the name squirrel cage is given because the shape of this is like squirrel. Squirrel means gallery. Okay, you can see the body of squirrel is just like this. Okay, so here rotor of 3-phase induction motor can be either 2 types. One is squirrel cage and another is phase wound or simply wound rotor. Okay, most of the induction motor up to 90% are of squirrel cage because it is rigid in state. The squirrel cage type rotor has simple and almost indestructible construction. This type of rotor consists of cylindrical laminated core having parallel slots in it. Okay, you can see that parallel slots in it there. These parallel slots carry rotor conductors. In this type of rotor, heavy bar of copper, aluminum of alloy are used to as a rotor conductor instead of wire. Okay, now here, first thing is that in squirrel cage rotor, we are not using windings. Instead of winding, what we are using is bar. You can say copper or aluminum bars. Okay, we can say as a rod also. Okay, these bars are slightly skewed. You are seeing that these are not in parallel lines. Means they are in parallel, but they are not in straight line. They are a little bit skewed. Okay, and they all are connected by end rings. Got it? Okay, so rotor slot are slightly skewed to achieve following advantage. Some advantages are there which we are getting from skewed nature. First is it reduces locking tendency of rotor. If once the rotor is locked, okay, what will happen? Okay, either it will be stopped or it will run in synchronous condition. Okay, but both are not possible in induction motor without any external force or external things. Okay, so first it reduced locking tendency of rotor. Second, increase the effective transformation ratio between stator and rotor. Increase rotor resistance. Okay, these are some benefit of skewed nature. Got it? Now phase wound, or you can say slip ring type. Here you can see that these 3 rotor windings are connected to a slip ring. This is nothing but a slip ring. Okay, so phase wound rotor is wound with 3-phase double layer distributed winding. The number of poles of rotor are kept same as the number of pole of stator. The rotor is always wound 3-phase even if the stator is wound 2-phase. Got it? The 3-phase rotor winding is internally star connected.
The other three terminals of winding are taken out by three insulated slip rings mounted on the shaft and brushes resting on them. These three brushes are connected to the external star-connected rheostat. This arrangement is done to introduce an external resistance in rotor circuit for starting purpose and for changing the speed torque characteristics. So here you can say that the best use of slip ring is we can attach some external resistance in it for changing its speed and starting purpose. Okay, these are two difference between squirrel cage and slip ring. अगर मैं सिंपली बात करूं तो स्क्विरल केज में क्या होता है, वाइंडिंग्स नहीं होते लेकिन स्क्यूड नेचर के कॉपर बार फिट किए जाते हैं, ठीक है, जैसे हम रॉड कहते हैं, वो एक एंड से डाल के दूसरे एंड निकालते हैं और लास्ट में उसे क्या करते हैं, शॉर्ट सर्किट कर देते हैं, ठीक है। और स्लिपरिंग इंडक्शन मोटर में क्या करते हैं, तीन स्लिपरिंग्स यूज होती हैं, ठीक है, जो तीन फेज को उसमें कनेक्ट करती हैं। ओके, दीज आर द बेसिक डिफरेंस बिटवीन दैट। नेक्स्ट का दिस इज बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ थ्री फेज इंडक्शन मोटर। ओके, थ्री फेज इंडक्शन मोटर। अब थ्री फेज इंडक्शन मोटर का बेस्ट क्या आपने देखा कि भाई रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड हो रही है, वो कौन सी हो रही है, थ्री फेज इंडक्शन मोटर के कारण हो रही है। रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड विल लिंक विथ योर रोटर, राइट। रोटर इज शॉर्ट सर्किटेड। अब शॉर्ट सर्किटेड है तो क्या होगा, रोटर के अंदर ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा, ठीक है। और एक लॉ कहता है कि व्हेन करंट कैरिंग कंडक्टर इज प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड इट एक्सर्ट सम फोर्स और इट सम फोर्स एक्सर्ट ऑन इट, ठीक है। मतलब उस फोर्स के कारण क्या होगा, आपका रोटर रोटेट करेगा, ठीक है, तो आपका रोटर रोटेटिंग स्टार्ट हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे कुछ फंडामेंटल थिंग्स हैं कि जो मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, यहाँ मैं लिख रहा हूँ, देखो सिंक्रोनस स्पीड है हमारी, ठीक है। सिंक्रोनस स्पीड मतलब स्पीड ऑफ योर मैग्नेटिक फील्ड दैट विल बी इक्वल टू 120 f by p। ओके, नाउ जो हमारी रोटर की स्पीड है, ठीक है, रोटर स्पीड विल बी लिटिल बिट लेस, ओके, विल बी लेसर देन your magnetic field speed, right? Rotating magnetic field, okay। और इस चीज को हम क्या कहते हैं, द डिफरेंस बिटवीन, ठीक है, डिफरेंस बिटवीन रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड एंड रोटर स्पीड इज नोन एज स्लिप। ये याद रख लेना, ठीक है, स्लिप जितनी कम उतना अच्छा, ठीक है, डन। ओके, हाँ, अब आगे बढ़ते हैं। अब ये हो गया हमारा इसका थ्री फेज इंडक्शन मोटर का। इसमें एक चीज और है कि स्लिप की इक्वेशन क्या है, ns माइनस एन अपॉन एन एस, राइट। सेकेंड थिंग इज दैट कि इसका टॉर्क इक्वेशन भी आता है, ठीक है। नाउ ये हुई थ्री फेज इंडक्शन मोटर की बात। अब सिंगल फेज इंडक्शन मोटर की बात करते हैं। तो सिंगल फेज इंडक्शन मोटर में सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है कि सिंगल फेज इंडक्शन मोटर इज नॉट सेल्फ स्टार्टिंग। ओके, नाउ सेल्फ स्टार्टिंग नहीं है मतलब ये खुद कभी चालू नहीं हो सकती। कभी कभी आपने देखा होगा, ठीक है, जैसे रेलवे के पंखे होते हैं, ठीक है, उसमें आपको पेन से उसे घुमाना पड़ता है तब जाके वो घूमते हैं, ठीक है। कभी कभी सिलाई मशीन में भी आपने देखी होगी, यू आर सीन इन दैट सेविंग मशीन, कि जो मोटर कनेक्ट होती है उसको हैंड से पहले रोटेट करो, एक बार रोटेट किया उसके बाद वो रोटेट स्टार्ट होता है, ठीक है। लेकिन हमारा पंखा है, ठीक है, अब पंखे में अगर आप कैपेसिटर कनेक्ट नहीं करोगे, उसे स्टार्ट करोगे तो स्टार्ट नहीं होगा, राइट, बिकॉज इट इज सिंगल फेज इंडक्शन मोटर, ठीक है। तो फर्स्ट थिंग इज व्हाट, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर इज नॉट सेल्फ स्टार्टिंग, ठीक है। आई रिपीट, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर इज नॉट सेल्फ स्टार्टिंग बिकॉज रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड इज नॉट जनरेटेड इन इट, ठीक है, क्लियर। रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टली जनरेट नहीं होती, हाँ, कुछ चेंज करके हम उसको रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड करते हैं, ठीक है। तो सिंगल फेज इंडक्शन मोटर is an AC motor where electrical energy is converted into mechanical energy to perform some physical task. This induction motor requires only one power phase for their proper operation. They are commonly used in low power application in domestic and industrial use. Simple construction, cheap cost, better reliability, easy to repair and better maintenance, and some of it marks markable advantage, ठीक है। ये एक सिंपल डायग्राम है सिंगल फेज इंडक्शन मोटर का, ठीक है। एक यहाँ पे स्टेटर होगा, दूसरा रोटर होगा, ठीक है। स्टेटर पे हम क्या दे रहे हैं, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर। अब देखो, अगर सिंपल सिंगल फेज इंडक्शन मोटर दे रहे हो विदाउट एनी टाइप ऑफ एक्स्ट्रा कनेक्शंस और इंसर्शन ऑफ इंडक्टर और कैपेसिटर, बेसिकली कैपेसिटर, तो ये सेल्फ स्टार्टिंग नहीं होगी। तो अब उसे सेल्फ स्टार्टिंग करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, ठीक है। तो कंस्ट्रक्शन ऑफ सिंगल फेज इंडक्शन मोटर कुछ ऐसा ही है। कंस्ट्रक्शन में आप ज्यादा डिफरेंस नहीं देखोगे थ्री फेज और सिंगल फेज में, ठीक है। खाली एक होगा, एक मेन वाइंडिंग आ जाएगी और ऑक्सिलरी वाइंडिंग आ जाएगी,
ठीक है, जो हम 3 फेज इंडक्शन मोटर में नहीं देख रहे थे। ठीक है, तो सेम है, रोटर है, फ्रेम है, स्टेटर है, मोटर शाफ्ट है। ठीक है, ये एंड सील्स हैं। ठीक है, नाउ हियर यू कैन से दैट, देखो ये आपका बेसिक एक है स्टेटर पोर्शन कनेक्टेड इन टू पार्ट। फर्स्ट इज मेन वाइंडिंग, दिख रहा है आपको रेड में, ये मेन वाइंडिंग है। दूसरी आप देख सकते हो ये पोर्शन जो देखा आपने, ठीक है, ये है आपका स्टार्टिंग वाइंडिंग। ठीक है, तो एक स्टेटर वाइंडिंग को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया, मेन वाइंडिंग है, स्टार्टिंग वाइंडिंग। स्टेटर, ठीक है, द मेन कंपोनेंट सिंगल फेज इंडक्शन मोटर आर स्टेटर एंड रोटर। ठीक है, सेम है, स्टेटर रोटर जो उसमें था वही है। ठीक है, स्टेटर इज नोन टू बी स्टेशनरी व्हाइल रोटर इज फॉर रोटेटिंग। ठीक है, a squirrel cage rotor is used here. It has laminated iron core with many slots. Rotor slots are closed or semi-closed type. Rotor winding are symmetrical and at same type it is short circuited. ठीक है, बेसिक थियरी है जो सेम वहां पे, लेकिन जो मेन है, द स्टेटर वाइंडिंग इन सिंगल फेज इंडक्शन मोटर हैज टू पार्ट, याद रखना। 3 फेज में ये नहीं था, सिंगल फेज में स्टेटर वाइंडिंग दो पार्ट में डिवाइड होती है, एक है मेन वाइंडिंग जो देख रहे हो आप, दूसरी है ऑक्सिलरी वाइंडिंग, दैट इज दिस। Okay, now usually auxiliary winding is perpendicular to the main winding, perpendicular to the main winding. In single phase induction motor the winding with more turns is known as main winding. ठीक है, जो मेन वाइंडिंग है उसमें टर्न्स ज्यादा रहते हैं। ओके, now principle of operations, the single phase AC machine is given to a stator winding, ठीक है, और single phase AC supply is given to a stator winding. Due to this magnetic ड्यू टू दिस मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस। ठीक है, अब सिंगल फेज जब दोगे आप सप्लाई उसको तो क्या होगा, फ्लक्स जनरेट होने वाला है, लेकिन ये फ्लक्स कौन सा होगा, पल्सेटिंग टाइप। ठीक है, पल्सेट इन साइनसोइडल मैनर। आफ्टर सम टाइम द फील्ड पोलैरिटी रिवर्स। अब क्या होता है साइनसोइडल वेवफॉर्म में कि एक बार आपने ये दिया पॉजिटिव, अगेन नेगेटिव, तो ये क्या हो रहा है, साइनसोइडल वेवफॉर्म में पल्स टाइप आ रहा है। ठीक है, अब इस टाइप का होगा तो क्या होगा, रोटर पहले ये घुमा फिर रिवर्स डायरेक्शन में आया, राइट। ओके, डायरेक्शन चेंज हो रही है, अब इस डायरेक्शन ऐसे इस तरह से घूमेगा तो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होने नहीं वाली सीधा। ठीक है, सो इसके लिए हम क्या करते हैं, रिवर्स एंड ऑल्टरनेटिंग फ्लक्स कैन नॉट प्रोवाइड रिक्वायर्ड रोटेशन टू द मोटर। ठीक है, पल्सेटिंग टाइप है इसीलिए, बट इफ द मोटर इज मूव्ड बाय एक्सटर्नल मींस, अब कोई एक्सटर्नल सोर्स इसे सप्लाई दे दे, ठीक है, या कनेक्ट हो जाए तो मोटर विल रोटेट विद फाइनाइट स्पीड। ठीक है, यूजिंग द डबल फील्ड रिवॉल्विंग थियरी द बिहेवियर ऑफ दिस मोटर कैन बी एक्सप्लेन बिलो। अब हम क्या करेंगे, डबल फील्ड थियरी से देखेंगे इसे सेल्फ स्टार्टिंग कैसे करते हैं। ठीक है, तो डबल फील्ड थियरी क्या कहती है कि यहाँ पे आपको दो फेज दिख रहे हैं, तो सिंगल फेज को हम दो फेज में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, बाय मीन्स ऑफ कैपेसिटर और एनी अदर थिंग। ठीक है, जिसके कारण क्या होगा, जब दो फेज होंगे, ठीक है, तो एक दो फेज के बीच में 120 डिग्री का फेज शिफ्ट रहेगा। ठीक है, और 120 डिग्री फेज शिफ्ट नहीं रहेगा तो 90 डिग्री का फेज एंगल रहेगा। ठीक है, तो अब उसके कारण क्या हो रहा है, जैसे फेज डिफरेंस आ रहा है तो उसके कारण रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रही है। तो देखो, लेट फाइव बी द पल्सेटिंग फील्ड ऑफ मोटर विद टू कंपोनेंट ऑफ मैग्नीट्यूड 5/2। ठीक है, 5m है वो मेन फ्लक्स है, उसके दो कंपोनेंट होंगे, फर्स्ट इज 5/2, सेकंड इज 5/2। ठीक है, और 5m/2 और 5m/2। ठीक है, एक 5 को डिवाइड बाय 2 किया है। ठीक है, बोथ रोटेट एट स्पीड ऑफ ओमेगा रेडियन पर सेकंड इन अपोजिट डायरेक्शन, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में ड्रॉ किए, देखा। ठीक है, दिस इज शोन इन फिगर। Alternating flux produced by the stator is represented by phi 1 and phi 2. Okay. Okay. Each of the flux is equal to the half of maximum flux of alternating, and they rotate at synchronous speed in opposite direction. ठीक है. The flux phi 1 will result in torque T1 in anti-clockwise direction to flux phi 2 will produce torque T2 in clockwise direction. Right. When the rotor is in rest condition, torque T1 and T2 are equal and opposite to the net torque developed with 0. Therefore, single phase induction motor is not self-starting. ठीक है, सिंपल कंडीशन में देखूं, नॉर्मल कंडीशन में जब तक आप कोई एंगल वगैरह नहीं दोगे, ठीक है, तब तक वो सेल्फ स्टार्टिंग। एक मिनट, ठीक है, ओके। दिखा सबको, ठीक है।
नाउ टाइप ऑफ सिंगल फेज इंडक्शन मोटर, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर के टाइप कौन से? पहला है आपका स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर। स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर में क्या करते हैं, एक ही फेज को दो पार्ट में स्प्लिट कर लेते हैं, ऑल्सो नोन एज रेजिस्टेंस स्टार्ट मोटर। द मेन वाइंडिंग एंड ऑक्सिलरी वाइंडिंग आर डिस्प्लेस्ड बाय 90 डिग्री। ठीक है, मेन वाइंडिंग ये है, स्टार्टिंग वाइंडिंग ये है, दोनों को 90 डिग्री में डिस्प्लेस किया हुआ है। ठीक है, बाय सेंट्रीफ्यूगल स्विच, सेंट्रीफ्यूगल स्विच दिख रही है। ठीक है, सम ऑफ इट कैरेक्टरिस्टिक इंक्लूड पावर रेटिंग ऑफ 60 वोट टू 250 वोट, कांस्टेंट स्पीड एंड हाई स्टार्टिंग करंट। ड्यू टू लो कॉस्ट ऑफ मोटर इट इज वेरी पॉपुलर इन मार्केट। ठीक है, तो पहला एक था स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर। नाउ नेक्स्ट इज कैपेसिटर स्टार्ट मोटर। यहाँ पे ध्यान दो, अब क्या होता है, हमारे पास एक वाइंडिंग थी। ठीक है, अब एक वाइंडिंग सपोज करो, एक वाइंडिंग का फ्लक्स आपका स्टार्ट हो रहा है 0 से। ठीक है, ये 0 से स्टार्ट हुआ, दिस इज अ 0। ठीक है, और ये मैंने मेन वाइंडिंग ली है एम। क्लियर? अब क्या हो रहा है, आई एम कनेक्टिंग अ कैपेसिटर। नाउ कैपेसिटर में हमने देखा सिविल की लॉ से करंट क्या हो रहा है, लीड कर रहा है। ठीक है, तो सपोज करो आपका फ्लक्स यहाँ से जब कैपेसिटर कनेक्ट करोगे तो यहाँ से आपका फ्लक्स कैपेसिटर का होगा, मीन्स आगे यूं जाएगा। ठीक है, यहाँ से ये आएगा। गॉट इट? डायग्राम थोड़ा सा वो है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या मिल रहा है हमें, इंस्टेड ऑफ सिंगल वाइंडिंग वी आर गेटिंग, in single winding we are getting two fluxes, one from main winding, another is the winding in which capacitor is connected, means the capacitor after capacitor। ठीक है, कैपेसिटर एक्चुअली हो तो यहीं पे कनेक्ट करिए स्टार्ट वाइंडिंग में, मेन वाइंडिंग दिख रही है, यहाँ पे कैपेसिटर कनेक्ट है। ठीक है, तो इन दोनों में क्या होगा, फेज डिफरेंस आएगा। अब फेज डिफरेंस के कारण क्या होगा, अगर इसका जब रिजल्टेंट लोगे, ठीक है, तो रिजल्टेंट आपको बताएगा कि दैट विल बी इन रोटेटिंग नेचर। ठीक है, सो दिस इज हाउ वी आर कन्वर्टिंग सिंगल फेज इनटू रोटेटिंग फील्ड। ओके, capacitor start motor commonly used in those application where high starting torque is required। ठीक है, जहाँ हाई स्टार्टिंग टॉर्क चाहिए वहां पे ये रिक्वायर्ड होता है। नेक्स्ट इज कैपेसिटर स्टार्ट एंड कैपेसिटर रन टाइप ऑफ मोटर्स। ठीक है, खासकर डोमेस्टिक में आपने देखा होगा। ठीक है, तो क्या यहाँ दिख रहा है आपको, स्टार्टिंग कैपेसिटर, रनिंग कैपेसिटर, दो कैपेसिटर कनेक्टेड है। ठीक है, और यहाँ एक सेंट्रीफ्यूगल स्विच है। तो case rotor and stator winding are two main part of motor. The stator winding are placed 90 degree. This uses two capacitors in parallel. Here also centrifugal switch is used. Starting large load, simple operation, better efficiency and some of it characteristics are some of it characteristics. Domestic purpose में ज़्यादा यूज होता है। हम जो यूज करते हैं फैन, that is basically nothing but you can say capacitor start induction motor। ठीक है, now comes permanent split capacitor type। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, case rotor or stator winding are two part of rotor. This has only one capacitor in series with auxiliary winding। ये कैपेसिटर वर्क इन रनिंग एंड स्टार्टिंग कंडीशन, एक ही कैपेसिटर स्टार्टिंग और रनिंग कंडीशन में यूज हो सकता है। ठीक है, ओके, डायग्राम में ज्यादा चेंज नहीं है तो याद करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, यहाँ पे कोई सेंट्रीफ्यूगल स्विच यूज नहीं हो रही है। ठीक है, ठीक है, फैन और ब्लोअर में परमानेंट स्प्लिट कैपेसिटर टाइप ऑफ मोटर यूज करते हैं। क्लियर? नेक्स्ट इज शेडेड पोल। अब यहाँ पे देखो ध्यान से, यहाँ क्या करते हैं, एक जैसे वाइंडिंग है। ठीक है, उसमें कोर आपको ये दिख रहा है, कोर के पोल्स हैं। ठीक है, इसको बीच में से क्या किया, कट किया हुआ है, कट सेक्शन दिखा है, और यहाँ पे एक और वाइंडिंग दी है। तो देखो दो वाइंडिंग है, एक आपका ये वाइंडिंग मेन है, दूसरा आपका शेडिंग कॉइल है, दिख रहा है आपको। ठीक है, अब देखो क्या होगा, जब फ्लक्स आप सप्लाई दोगे, एक फ्लक्स जनरेट होगा इससे, ठीक है, मेन वाइंडिंग से, दूसरा होगा आपका शेडिंग कॉइल जो है, शेडिंग कॉइल वहां से होगा। अब आपका इंडक्टर है, इंडक्टेंस है, इसका मतलब क्या होगा, लैगिंग इन नेचर। ठीक है, तो एक अगर लीड कर रहा है तो दूसरा क्या करेगा, लैग करेगा। ठीक है, तो आपको एक फेज से आपको दो फ्लक्स जनरेट हो रहे हैं। ठीक है, तो केज रोटर और स्टेटर आर मेन पार्ट ऑफ दिस मोटर। हियर स्टेटर कंसिस्ट ऑफ सेलिएंट पोल विद एक्साइटिंग कॉइल्स, ईच पोल इज रैप्ड बाय शेडिंग कॉइल, शेडिंग कॉइल के साथ कनेक्ट किया हुआ है। ठीक है, मीन स्लॉट करा जाता है, स्लॉट के ऊपर एक और कॉइल रखी जाती है। ठीक है, सिंपल कंस्ट्रक्शन दिया हुआ है इसका। ठीक है, लो एप्लीकेशंस जो होते हैं, पावर एप्लीकेशन, उसमें ये यूज होते हैं। उसके बाद कम सेपरेटली एक्साइटेड। देखो यहाँ मोटर का बेसिक फंडामेंटल आपको समझा दिया गया है। अब उसके बाद आता है डीसी मोटर्स। ठीक है, एसी मोटर का फंडामेंटल सीख चुके हो। ठीक है, अब उसकी इक्वेशंस जो भी हैं वो मैं नेक्स्ट लेक्चर में वापस रिपीट करूंगा। ठीक है, तो सेपरेटली एक्साइटेड डीसी मोटर में आप देख सकते हो, परमानेंट मैग्नेट टाइप डीसी मोटर, सेपरेटली एक्साइटेड डीसी मोटर, डीसी सीरीज वाउंड मोटर, शंट वाउंड डीसी मोटर्स एंड कंपाउंड डीसी मोटर्स। इसके अलावा अगर आपको सिंपल याद करना हो तो देख लो, डीसी मोटर को दो पार्ट में डिवाइड करो, सेल्फ एंड सेपरेटली एक्साइटेड, सेल्फ एक्साइटेड एंड सेपरेटली एक्साइटेड। ठीक है, उसके बाद आप कर सकते हो सीरीज शंट एंड कंपाउंड टाइप। कंपाउंड में भी लॉन्ग शंट एंड शॉर्ट शंट आता है।
ठीक है. Like DC motor, these motor also have both stator and rotor. ठीक है. Stator refer to static part of motor which consists of field winding and rotor is moving armature which consists of armature winding or coil. ठीक है. Separately excited DC motor is field coil similar to that of shunt wound DC motors. The name suggests the construction of this type of motors. ठीक है. ये बेसिक एक है फंडा. ठीक है. ये है आपका बेसिक डीसी वोल्टेज सोर्सेज. हियर द फील्ड कॉइल इज एनर्जाइज्ड फ्रॉम सेपरेट डीसी वोल्टेज. दिख रहा है आपको डीसी मोटर का है. ठीक है. ये आपका आर्मेचर है. आर्मेचर यानी बेसिकली आप रोटर समझ सकते हैं. यहाँ पे आपने डीसी सप्लाई दिया. डीसी सप्लाई फील्ड में आया. फ्लक्स जनरेट होगा. दैट विल लिंक विथ योर आर्मेचर. आर्मेचर इज शॉर्ट सर्किटेड. ठीक है. तो क्या होगा यहाँ पे ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा और इस पे कुछ फोर्स लगेगा जिसके कारण ये रोटेट करेगा. ठीक है. सेम फंडामेंटल. ठीक है. is energized field coil, so that coil are electrically isolated from each other and this connection is specialty of this type of DC motors. ठीक है. इक्वेशन ऑफ वोल्टेज करंट एंड पावर ऑफ डीसी मोटर, ये एक ध्यान रखना ना. ठीक है. आर्मेचर करंट क्या है, सपोज आई है तो बैक ईएमएफ ईबी इक्वल टू वी माइनस आई आर आई. ठीक है. एक और है इफेक्ट ऑफ और आर्मेचर रिएक्शंस. ठीक है. वो भी मैं नेक्स्ट लेक्चर में एक बार समझाऊंगा आपको आर्मेचर रिएक्शन क्या है. ठीक है. तो बैक ईएमएफ की इक्वेशंस में याद रखना ईबी इक्वल टू वी माइनस आई ए और आई आर ए. ठीक है. वी क्या है, सप्लाई वोल्टेज है. आर है आर्मेचर रेजिस्टेंस. सो पावर ड्रॉन फ्रॉम मेन सप्लाई पी इक्वल टू वी आई. Mechanical power developed. So PM will be what, power input to armature minus losses in armature. कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं. ठीक है. स्पीड आर्मेचर कैरेक्टरिस्टिक, टॉर्क आर्मेचर कैरेक्टरिस्टिक, ये नेक्स्ट लेक्चर में. ठीक है. स्पीड कंट्रोल है, फील्ड कंट्रोल, आर्मेचर कंट्रोल. ठीक है. रियोस्टेट, रिलक्टेंस एंड फील्ड वोल्टेज कंट्रोल बाय वेरिंग द वोल्टेज एट फील्ड. ओके. इतना है. बाकी जो क्वेश्चंस है वो नेक्स्ट लेक्चर में समझाऊंगा. ठीक है.